کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو لاہور پہنچیں گے۔ پورا پاکستان نواز شریف کی واپسی کا منتظر ہے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نئی مردم شماری کے تحت الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری ادا کرے۔ مزید کہا کہ 2018 کا جھرلو الیکشن نہ ہوتا تو پاکستان ترقی کے میدان میں بہت آگے ہوتا۔ نواز شریف اقتدار سے محروم نہیں ہوئے، عوام سے خوشحالی چھین لی گئی ہے۔ نواز شریف کی واپسی کے بعد دوبارہ ترقی کا سفر شروع ہوگا۔ اپنے قائد کا لاہور میں فقید المثال استقبال کروں گا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی کی نئی تاریخ سامنے آ گئی۔ نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپس آئیں گے۔ اس سے پہلے نواز شریف کی 16 اکتوبر کو واپسی کا اعلان کیا گیا تھا۔ نواز شریف کی واپسی کے لیے 20 ستمبر کی تاریخ بھی دی گئی تھی۔ نواز شریف 19 نومبر 2019 کو علاج کے لیے لندن گئے تھے۔ پارٹی کے حالیہ فیصلے کے مطابق وہ 3 سال 11 مہینے بعد وطن واپس آئیں گے۔ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب اکتوبر میں انشاءاللہ پاکستان تشریف لائیں گے۔ شہباز شریف کا نون لیگ کے قائد محمد نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے ایک اور تاریخ کا اعلان۔ اب نواز شریف 16 اکتوبر کی بجائے 21 اکتوبر کو وطن واپس پہنچیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب اکتوبر میں انشاءاللہ پاکستان تشریف لائیں گے۔ چند روز قبل نواز شریف کی 16 اکتوبر کو واپسی کا بتایا گیا تھا، جبکہ اس سے پہلے نواز شریف کی 20 ستمبر کو واپسی کی بھی بات سامنے آئی تھی۔ شہباز شریف نے واضح کیا کہ پارٹی قائد لاہور میں لینڈ کریں گے اور ان کا شاندار استقبال کیا جائے گا۔ شہباز شریف کے حالیہ بیان سے قبل مسلم لیگ نون کی لندن میں حسن نواز کے دفتر میں اہم میٹنگ ہوئی، جس میں شہباز شریف، خواجہ آصف، ملک احمد خان نے شرکت کی۔ میٹنگ میں نواز شریف کی وطن واپسی پر قانونی رکاوٹیں اور الیکشن کے علاوہ دیگر اہم امور پر مشاورت کی گئی۔ 2018 کا نواز شریف نے وعدہ کیا تھا، وعدہ خلافی کی ہے۔ نواز شریف 19 نومبر 2019 کو علاج معالجے کے لیے لندن گئے تھے۔ ان کے پلیٹلیٹس خطرناک حد تک گر گئے تھے۔ ان کو ہنگامی طور پر ایئر ایمبولینس کے ذریعے لاہور سے لندن منتقل کیا گیا تھا۔ نواز شریف علاج کی غرض سے ہائی کورٹ سے 4 ہفتے کی مہلت لے کر گئے تھے۔ پارٹی کے حالیہ کے مطابق وہ 3 سال 11 ماہ بعد وطن واپس آئیں گے۔ قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد انتخابات کا 90 روز کے اندر آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ اور شفاف انعقاد پیش قدمی کا واحد راستہ ہے۔ تحریک انصاف کی قیادت نے متفقہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ آئین صدر مملکت اور عدالت عظمیٰ پر نہایت اہم ذمہ داری ڈالتا ہے، انہیں طے شدہ مہلت کے اندر انتخابات کے انعقاد کا پابند بناتا ہے۔ امید ہے صدر اور سپریم کورٹ اپنی دستوری ذمہ داریاں نبھائیں گے، ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ سیاسی عدم استحکام اور معاشی بدحالی سے نجات آئین پر عمل درآمد سے ممکن ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دورہ ترکیہ کے وزارت دفاع کے مطابق ترک وزیر دفاع نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا خیر مقدم کیا۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے دفاعی تعلقات اور دفاعی صنعت میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان میں تعینات امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے گوادر کا دورہ کیا ہے۔ ترجمان امریکی سفارت خانے کے مطابق امریکی سفیر کے دورہ گوادر میں ترقی، تجارتی تعلقات کو وسعت دینے کے مواقع کا جائزہ لیا گیا۔ اسی حوالے سے بات کریں گے ڈپٹی بیورو چیف اعجاز احمد سے۔ اعجاز، تفصیلات کیا ہیں؟ جی، امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم ایک سرپرائزنگ موو میں آج گوادر پہنچے ہیں۔ انہوں نے گوادر کے دورے کے دوران ایوان صنعت و تجارت، سیاسی رہنماؤں اور جو دیگر اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے ملاقات کی۔ اس موقع پر معاشی ترقی اور معاشی تعاون کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ امریکی سفیر نے گوادر میں یہ یقین دہانی کرائی کہ قدرتی آفات اور دیگر آفات پہ امریکہ پاکستان کی مدد کرے گا، جبکہ گوادر شہر کی ترقی اور پھر گوادر شہر میں جو معاشی نشو و نما کے مواقع ہیں ان میں تعاون کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی۔ ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا۔ کرنسی اور آئل کے بعد چینی کھاد اور گندم سمگلنگ کی رپورٹ وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں پیش۔ سمگلرز اور سرکاری اہلکاروں کی تفصیلات بھی رپورٹ میں شامل کی گئی ہیں۔ گندم کے 592 ذخیرہ اندوزوں کی نشاندہی کی گئی۔ حساس ادارے کی نشاندہی پر 90,000 میٹرک ٹن سے زیادہ ذخیرہ شدہ اور سمگل ہونے والی گندم قبضے میں لی گئی۔
हुकूमत ने स्मगलर्स को निशाने इबरत बनाने की ठान ली। गंदम, चीनी और खाद की स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद की पकड़ अगला हदफ। वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट में जमा तफसीली रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि कई सरकारी अफसरान और अहलकार स्मगलर्स की सहूलतकार बने हुए हैं। पंजाब में 272, सिंध में 244 और खैबर पख्तूनख्वा में 56 सरकारी अहलकार स्मगलर्स के सहूलतकार हैं। बलोचिस्तान में 15 और इस्लामाबाद में 5 अहलकार स्मगलर्स के साथी बने हुए हैं। गंदम की स्मगलिंग में 877 नामों को सर्कल किया गया, जिसमें 26 स्मगलर्स और 592 ज़ख़ीरा अंदोज़ों के नाम शामिल हैं। 259 सरकारी अहलकार भी गंदम स्मगलिंग करने वालों के मुआवन बने हुए हैं। चीनी की स्मगलिंग बारे अहम मालूमात भी रिपोर्ट का हिस्सा हैं। इस काम में मुलव्वस 875 स्मगलर्स की निशानदही की गई है। 148 अफराद चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस हैं। चीनी की स्मगलिंग में मुलव्वस कानून नाफिज करने वाले और दीगर महकमों के 52 अफसरों की निशानदही की गई है। खाद की स्मगलिंग से मुताल्लिक़ 469 नाम सामने आए हैं। इस बारे 64 स्मगलर्स और खाद के 405 ज़ख़ीरा अंदोज़ सर्कल किए गए हैं। खाद अफगानिस्तान स्मगल करने वाले 5 अफराद का ताल्लुक पंजाब, 3 का सिंध, 40 का बलूचिस्तान और 12 का खैबर पख्तूनख्वा से है। वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट में जमा रिपोर्ट में स्मगलर्स, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और उनके सहूलतकारों के गिर्द घेरा तंग होगा। एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत ने सानेहा बल्दिया फैक्ट्री के फैसले पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि सानेहा के जिम्मेदार फैक्ट्री मालिकान हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि अगर हम मुलव्वस हैं तो हमें फांसी दे दी जाए। सानिया बल्दिया फैक्ट्री के अदालती फैसले पर एमक्यूएम पाकिस्तान का शदीद रद्द अमल। क़यादत का कहना है कि एक फैसले को राय बनाकर अफसोसनाक फैसला सुनाया गया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरबरा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि 12 साल बाद हमारे 2 कारकुनान को सजाए मौत हुई, हम इनका दिफा करेंगे। सानिया में शहीद होने वाले लोग भी हमारे और बचाने वाले भी हम हैं। एमक्यूएम की आला क़यादत यहाँ पे इसलिए बैठी है कि हम सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस से, हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि सानाए बल्दिया टाउन फैक्ट्री पर एक अदालती कमीशन बनाया जाए। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि जज साहब ने अंदेशा जाहिर किया कि एमक्यूएम की क़यादत के बगैर कारकुनान ने ये कैसे किया। अगर ऐसा है तो हमें भी फांसी दी जाए। फैक्ट्री मालिकान राशिद भाईला और शाहिद भाईला सानेहा के जिम्मेदार हैं। जिस दिन से वो अदालत से छूटे, लाड़काना की अदालत से, अगली फ्लाइट से बाहर भागे, आज तक बाहर है। एक लंदन में रह रहा है, एक कनाडा में रह रहा है। इन दोनों से बड़ा क्रिमिनल कोई और इंसान हो नहीं सकता। इस मौके पर साबिक वफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम ने बताया कि अगर अंदेशे पर बात की गई तो हम इस पर कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी, रऊफ सिद्दीकी और दीगर भी मौजूद थे। बात होगी साइफर केस की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की समाअत अटक जेल करने के खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि गैर मौसर होने वाली बात से इत्तफाक नहीं करता। ये तय तो होना है कि नोटिफिकेशन किस इख्तियार के तहत कर सकते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई के वकला और एफआईए प्रोसिक्यूटर और एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत के सामने पेश हुए। दौरान समाअत चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत ने वजारत कानून के नोटिफिकेशन को अदालत के सामने पढ़ते हुए कहा कि इस्लामाबाद से ट्रायल कैसे पंजाब में मुंतकिल हो सकता है। ट्रायल दूसरे सूबे मुंतकिली सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। समाअत का मुकाम तब्दील करने के लिए मुतलका अदालत के जज की रजामंदी भी जरूरी होती है। नोटिफिकेशन का मकसद चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में रखना था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुग्गल ने नोटिफिकेशन एक दफा होने के बायस पिटीशन गैर मौसर होने पर मौकफ अपनाते हुए कहा कि रूल्स ऑफ बिजनेस में वजारत कानून के पास नोटिफिकेशन जारी करने का इख्तियार है, जिस पर अदालत ने कहा कि अगर कल दोबारा वही नोटिफिकेशन कर दिया जाए तो यही सवाल मुतलका हो जाता है। ये तय तो होना है कि नोटिफिकेशन किस इख्तियार के तहत कर सकते हैं। दरखास्त गैर मौसर होने वाली बात से मैं इत्तफाक नहीं करता। वकील शेर अफजल मरवत ने कहा कि अगर पहला ऑर्डर बिला जवाज और गैर कानूनी था तो इसके नताइज तो होंगे। बगैर देखे और बगैर मिले कैसे ट्रायल कोर्ट ट्रायल करेगी, जिस पर हाई कोर्ट ने कहा कि गैर मौजूदगी में तो ट्रायल नहीं हो सकता। प्रोसिक्यूटर जुल्फकार अब्बास नकवी ने कहा कि जुडिशियल रिमांड के लिए मुल्जिम को अदालत में पेश करना जरूरी नहीं। दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की जमानत में 26 सितंबर तक तौसी कर दी। दूसरी जानिब तोशाखाना जारी रसीदों के केस में प्रोसिक्यूटर ताहिर काजिम ने कहा कि बुशरा बीबी एफआईए में पेश होकर अपनी ऑडियो देंगी तो आवाज़ मैच हो सकेगी।
एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत की। वकील लतीफ खोसा ने अदालत को बताया कि बुशरा बीबी की चेयरमैन पीटीआई से अटक जेल में मुलाकात है। इनके पास अपने शौहर से मिलने का हफ्ते में एक ही दिन होता है। नैब ने भी बुशरा बीबी को आज तलबी का नोटिस भेजा हुआ है। वकील इंतजार बंजोथा ने कहा कि नैब को हिदायत जारी करें कि तारीख में तावन कर लिया करें। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नैब की जानिब से तलबी का पहले बताना जरूरी नहीं होता। बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में फिलहाल गिरफ्तारी दरकार नहीं। लतीफ खोसा ने मौक़िफ़ अपनाया कि एहतसाब अदालत डायरेक्शन जारी करे कि नैब को गिरफ्तारी दरकार हो तो पहले अदालत से इजाजत ली जाए। इस दौरान लतीफ खोसा ने बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में दरखास्त जमानत दायर की और मौक़िफ़ अपनाया कि बुशरा बीबी की अगर गिरफ्तारी मतलूब हो तो पहले आगाह किया जाए। बाद अज़ां अदालत ने बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में 26 सितंबर तक जमानत में तोसी कर दी। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना जाली रसीदों का केस। प्रोसिक्यूटर ताहिर काजिम ने कहा कि बुशरा बीबी की ऑडियो 10 दिन कबल FIA को भिजवाई है। बुशरा बीबी FIA में पेश होकर अपनी ऑडियो देंगी तो आवाज में मैच हो सकेगी। बुशरा बीबी खातून है, जिस्मानी रिमांड तो हो नहीं सकता। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा कि मुझे लग रहा है कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से ताखीर की जा रही है। प्रोसिक्यूटर ताहिर कासिम ने कहा कि बुशरा बीबी के FIA आने का इंतजार है। इस अफसार किया बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश हो चुकी हैं तो उस वक्त क्यों नहीं ऑडियो मैच करवाई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा गिलगित बल्तिस्तान। वज़ीर आज़म को अमन व अमान, तरक्याती मनसूबों, माहौलियाती आलूदगी और सियाहत के फ़रोग़ पर ब्रीफ किया गया। वज़ीर आला और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान ने मुलाकात की, यादगार शहदा पर भी हाज़िरी दी। निगरान वज़ीर आज़म का गिलगित बल्तिस्तान में मजहब के नाम पर इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आज़म पहले दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान पहुंचे, जहां वज़ीर आला सेक्रेटरीट में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने यादगार शहदा पर हाज़िरी दी। निगरान वज़ीर आज़म को तरक्याती मनसूबों, अमन व अमान की सूरत हाल, माहौलियाती और सियाहती शोबों में पेशरफ पर भी ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर निगरान वज़ीर आज़म ने मुतलका हुकाम को गिलगित में मजहब के नाम पर इंतशार फैलाने वाले तमाम अनासिर की बरवक्त निशानदही और उनके खिलाफ सख्त इक़दाम लेने की हिदायत कर दी और कहा कि तमाम शहरियों की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। अनवारुल हक काकड़ तलबा और तालिबात से भी मिले। उन्होंने तलबा के मॉडल्स का मुआयना किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, वज़ीर आला और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान ने मुलाकात की।